हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू एक्मे कॉमर्स एकेडमी। आज के लेक्चर में हम अमालगमेशन का सम नंबर 4 करने जाते हैं। इफ आई बिकम सेम 1, पेज नंबर 1.19। अभी ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक जो हम सम्स कर रहे थे वो सिंपल सम्स थे। अभी आगे जो आने वाले सम्स है उसमें गुडविल की भी एडजस्टमेंट है और उसके अलावा यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट की भी सम्स है। ठीक है, so let us start. Following were the balance sheet of A and B and C and D. Creditors, Mrs. A loan, capital accounts, assets में cash, stock, debtors, furniture, buildings, investment. Now the two firms decided to amalgamate their business as from 1st April 2024 under the name Mrs. A, B, C and D. For this purpose, it was agreed that Mrs. A loan should be repaid and the investment of Mrs. C and D be not taken over by the new firm. Goodwill of A and B was fixed at 16,000 and that of C and D at 20,000. Building was revalued at 1 lakh, but the stock of A and B was found overvalued by 8,000. The stock of C and D was undervalued by 4,000. A reserve of 5% on debtors was necessary for bad debts of both the firms. The total capital of Messrs. A, B, C and D was to be 1,60,000 and the capital of A, B, C and D was to be in the profit sharing ratio, which is 3:2:3:2. Means यहाँ पे न्यू रेशियो दिया है, बट गुडविल इन द न्यू फॉर्म टू बी रिटन ऑफ, तो कौन से रेशियो में राइट ऑफ करना पड़ेगा? इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एनी सरप्लस और डेफिसिट शैल बी एडजस्टेड इन कैश. तो लेट अस स्टार्ट विद द सम. Okay, now first of all start करते विद कैपिटल. सो कैपिटल है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए का जो कैपिटल है इट्स 80,000 एंड बी का कैपिटल है 40,000. सी और डी का कैपिटल है 48 एंड 32. So by balance brought down 48,000 and 32,000. कैश अकाउंट का बैलेंस है ए एंड बी. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,200 और सी एंड डी का है 23,400. So two balance brought down. पर यहाँ पे सी एंड डी का कुछ कैश का ट्रांजैक्शन नहीं है. ओके, सो ये तो न्यू फॉर्म का अकाउंट है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द adjustment. The two firms decided to amalgamate their business as from 1st April 2024 under the name Mrs. A, B, C and D. For this purpose, it was agreed that Mrs. A loan should be repaid. Mrs. A loan should be repaid. So it should be paid in cash. So cash account, payment side by Mrs. A loan. अभी देखो Mrs. A loan कितना दिया है? 10,000. So 10,000. And the investment of Mrs. C and D be not taken over by the new firm. New firm take over नहीं करेगी. So it should be distributed to partner in their capital ratio. अभी देखो यहाँ पे capital ratio क्या है? C capital है C और D का 48,000, C का है और D का है 32,000. So 8 6 8 4 3 2 and 2 2 so 3:2. 3:2 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. So our entry will be partners capital account debit to investment. So partners capital account debit side यहाँ पे आएगा to investment
to investments. Now see investments कितने हैं 30,000. 30,000 into 3 upon 5 into 3 upon 5 equal to 18,000, and 30,000 into 2 upon 5 equal to 12,000. So C को कितना डेबिट होगा 18,000 और D को 12,000. So 18,000 and 12,000. Okay. ये हो गया इन्वेस्टमेंट का. Now goodwill of A and B was fixed at 16,000. गुडविल 16,000 है A और B का. अभी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को दिया है ये सम में. नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, so it should be distributed equally. So our entry will be goodwill account debit to partners capital account. So by goodwill equally distribute करेंगे 8,000 and 8,000. 8,000 and 8,000. And C and D 20,000. So by goodwill $10,000 and 10,000. दोनों का भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सब में दिया नहीं है, सो वी विल ट्रीट इट एज इक्वल. सो 10,000 10,000. नाउ सेकंड इफेक्ट क्या आ जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 16 plus 20, so 36,000. Now in the end we have to write goodwill account. We have to write off goodwill. It is mentioned in the sum last adjustment. तो वो टाइम पे हम उसको goodwill को write off कर देंगे in your issue. Okay. Building was revalued at 1 lakh. अब बिल्डिंग देखो A and B का है. बुक वैल्यू कितनी है 80,000. Now it is revalued at 1 lakh. So 20,000. एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, सो एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. सो ए एंड बी के रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय बिल्डिंग 20,000. सेकेंड इफेक्ट बिल्डिंग 1 lakh. 80 plus 20 1 lakh. But the stock of A and B was found overvalued by 8,000. When asset is overvalued, उसको क्या करेंगे? Reduce करेंगे, right? So stock of A and B is found overvalued by 8,000. So to stock account 8,000. And stock of C and D was undervalued by 4,000. Undervalued है तो क्या करेंगे? Add करेंगे asset account debit to revaluation. So यहाँ पे आएगा बाय स्टॉक अकाउंट 4,000. अभी देखो दोनों का मिला के स्टॉक कितना है 4,800 प्लस 36,600. 40,800 प्लस 36,600. So 400, 37 and 40, 77,400. उसमें 8,000 रिड्यूस करना है. So minus 8,000. तो 69,400 और 4,000 उसमें ऐड करना है, तो योर स्टॉक विल बी 73,400. सो एसेट साइड में आएगा स्टॉक 73,400. क्लियर? आई होप समझ में आ रहा है. ओके. नाउ अवर नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टॉक हो गया. A reserve of 5% on debtors was necessary for bad debts of both the firms. So RDD का प्रोविजन करना है. Now debtors are 30,000. A and B का कितना है 30,000. 30,000 पे 5% 1,500. So to RDD 1,500. And इसका है 40,000 C and D का. 40,000 का 5% 2,000. So 2 RDD 2,000. Second effect, balance sheet, sundry debtors
दोनों का डेटर था 30 + 40 70, लेस RDD at 5%, लेस RDD at 5%, 3500, आउटर कॉलम 66500. सो डेटर का भी एडजस्टमेंट हो गया. ओके, टोटल कैपिटल of Messrs A, B, C and D was to be 1,60,000. And the new profit sharing ratio is 3:2 3:2. सो अब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है. बहुत सिंपल चीज है. टोटल कैपिटल दिया 1,60,000, उसको A, B और C और D को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द रेशियो ऑफ 3/10, 2/10, 3/10 and 2/10. 3:2 3:2 दिया है. तो 3/10, 2/10, 3/10 and 2/10 into 1,60,000 equal to 48,000. B का आएगा 32,000, C का आएगा 48,000 और D का आएगा 32,000. तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस दे दिया. कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस है. तो ये कहाँ आएगा? न्यू कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी, टू बैलेंस कैरिड डाउन. 48, 32, 48,000, 32,000, 48,000 and 32,000. बराबर. अब इसका एडजस्टमेंट हमें करना है कैश में. गुडविल इन द न्यू फॉर्म टू बी रिटन ऑफ. अब गुडविल को कौन से रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? न्यू रेशियो 3/10, 2/10, 3/10 and 2/10. सो अभी गुडविल को राइट ऑफ करते. सो सी गुडविल टोटल कितना है? 36,000. तो 3/10 into 36,000 equal to 10,800. 2/10 into 36,000 equal to 7,200. C का भी सेम आएगा 10,800 और D का आएगा 7,200. सो हमारी एंट्री क्या आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल. सो गुडविल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय A कैपिटल अकाउंट 10,800, by B capital account 7,200, by C capital account 10,800 and by D capital account 7,200. गुडविल अकाउंट क्लोज हो गया. सेकेंड इफेक्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. सो टू गुडविल A का 10,800, B 7,200, C 10,800 and D 7,200. ओके. अब क्या करते हैं? पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट A और B का है. क्रेडिट साइड इज 20,000. माइनस डेबिट साइड पे कितना है? 9,500. सो 10,500 का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू A and B in equal ratio. So to partners capital account
A and B 5250, 5250. So 10,500. Profit is second effect, partners capital account. Revaluation account debit to partners capital account. So partners capital account credit side by revaluation account 5250, 5250. बराबर? Okay. Now C and D का रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं. $4,000 माइनस 2,000. तो 2,000 का प्रॉफिट है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट C and D 1,000 and 1,000. So 2,000. Partners capital account second effect by revaluation account 1,000 each. Clear? Okay. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं और उसका जो बैलेंस है वो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. 88 and 593 250, 48 and 553 250. So यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 93 250 and 53 250. Now second effect, new partners capital account by balance brought down, by balance brought down 93 250 and 53 250. बराबर? Now C and D का क्लोज करते हैं. तो C and D का क्रेडिट साइड है 48 and 10 58 and 159,000. And 32 and 10 42 and 143,000 D का है. So 59,000 and 43,000. यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 59 minus 18 41,000 और यहाँ पे 31,000. सेकेंड इफेक्ट न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस में आएगा 41,000 and 31,000. राइट? बराबर? ओके. अब यहाँ पे कैश बैलेंस यहाँ पे 1,200 है. बाय बैलेंस कैरिड डाउन सो 11,200 and 11,200. अभी जो एडजस्टमेंट है वो कैसे करनी है? कैश में करनी है. सो अभी ये 1,200 ए और बी का है बैलेंस और सी एंड डी का देखो क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कितना था 23,400. सो 24,600 ओपनिंग बैलेंस आएगा. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,600. क्लियर? यहाँ का क्लोजिंग बैलेंस और सीएनडी में कोई कैश में ट्रांजैक्शन नहीं था, उसके लिए हमने कैश अकाउंट उसका सेपरेटली ओपन नहीं किया था. तो उसका ओपनिंग बैलेंस प्लस ये क्लोजिंग बैलेंस दोनों मिला के 24,600 कैश अकाउंट को ट्रांसफर किया. अब जो भी कैपिटल एडजस्टमेंट है इट विल बी थ्रू कैश अकाउंट. क्लियर? ओके. सो अभी हमारा देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज, कैश अकाउंट ओल्ड वाला क्लोज, गुडविल अकाउंट क्लोज. अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं. अभी कैपिटल एडजस्टमेंट करते हैं. अभी से वो जो क्रेडिट साइड है ए का वो ज्यादा है. सो ए के क्रेडिट साइड में आएगा 93,250. यहाँ पे बी का भी 5 ज्यादा है 53,250.
अब यहाँ पे सी और डी का डेबिट साइड ज्यादा है, ए और बी का क्रेडिट साइड ज्यादा है, मींस कि एक्चुअल कैपिटल इज मोर देन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, तो उसको हमें अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा, उनको रीपे करना पड़ेगा उनका कैपिटल। और सी एंड डी में क्या है कि डेबिट साइड मतलब कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल ज्यादा है और एक्चुअल कैपिटल कम है, तो उनसे कैश लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी पहले ए और बी, अभी देखो ए का 93,250 क्रेडिट साइड का टोटल 93,250 माइनस डेबिट साइड में 48 and 10 58,800 58,800। सो 34,450 34,450 ए को हमें पे करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम डेबिट साइड टू कैश अकाउंट 34,450 34,450 बराबर। बी का है 53,250। अब बी का जो है वो है क्रेडिट साइड का टोटल 53,250 माइनस डेबिट साइड का टोटल है 39,200। 14,050 बी को पे करना पड़ेगा, तो 14,050 बी का आ गया, तो यहाँ पे 53,250 ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। नाउ सी एंड डी, अभी देखो सी एंड डी का 48 + 10 58,800 है डेबिट साइड, मतलब उनका कैपिटल एक्चुअल कैपिटल कम है 58,800 माइनस सी का कितना है 41 है, सो सी विल हैव टू ब्रिंग 17,800, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 17,800, करेक्ट। ओके, अभी डी का देखते हैं। डी का है डेबिट साइड इज 39,200 बट क्रेडिट साइड में 31 ही है, तो उसका कैपिटल कम है 8,200 से, तो उसको 8,200 कैश लाना पड़ेगा 8,200। तो आपका कैपिटल अकाउंट हो गया क्लोज। आई होप सबको एडजस्टमेंट समझ में आई। नाउ उसकी सेकेंड इफेक्ट करेंगे कैश अकाउंट। अभी सी और डी से कैश आया है तो रिसीट साइड में आएगा टू सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट 17,800 टू डी कैपिटल अकाउंट 8,200। ए और बी को हमने पेमेंट किया है तो पेमेंट साइड में आएगा बाय ए कैपिटल अकाउंट 34,450 and by B capital account 14,050। अभी टोटल करते हैं पहले रिसीट साइड का 600 and 800 1400 and 200 1600 बैलेंस आया 1 9 26 and 24 50 600। पेमेंट साइड का $48,500 आ रहा है, तो 5,600 माइनस 48,500 2,100 का क्लोजिंग बैलेंस आया। सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,100। अब वो कैश बैलेंस कहाँ आएगा बैलेंस शीट में? कैश 2,100, कैपिटल ए बी सी एंड डी। ए का कैपिटल है 48,000, बी का 32,000, सी का 48,000 और डी का 32,000। सो 1,60,000 आउट ऑफ कॉलम। उसके बाद में क्रेडिटर्स
दोनों फर्म का मिला के 1 लाख है। क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब यहाँ पे हमारा स्टॉक आ गया, सन्डे डेटर्स आ गया, स्टॉक डेटर्स। नाउ फर्नीचर, फर्नीचर पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो फर्नीचर 8 + 10 18,000। उसके बाद में बिल्डिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। सब इसका टोटल करते 400,000 1921 87 160 260 2,60,000 asset side, 2,60,000 liability side, sum tallied. Clear? आई होप सबको समझ में आएगा। पर्टिकुलरली कैपिटल एडजस्टमेंट और गुडविल की एडजस्टमेंट, गुडविल राइट ऑफ करना है वो, राइट? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स देन प्लीज सेंड योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच।